Hi friends, in today's session we'll start with this modern periodic table. Hope you complete the previous session. In that we'll discuss the Mendeleev's periodic table. So what is the basic need to discuss this modern periodic table and which are the merits and demerits of Mendeleev's periodic table that we seen in last session. So today we start with this modern periodic table with Henry Moseley. So in 1900, modern periodic table was established by Henry Moseley. Henry Moseley work on this atomic spectra of this element proved that the atomic number is more fundamental property than atomic mass. अब ये क्यों ऐसा हुआ? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास था, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है. Why? What is the reason behind this? वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. He modified the Mendeleev periodic law. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. I emphasize on word atomic number. While in case of Mendeleev's periodic table or Mendeleev's law is the properties of elements are the periodic functions of atomic weight. See, this is Mendeleev's classification or Mendeleev's law, and this is our modern periodic law. What is the basic difference? Everything is same. Last word, that is atomic number. Why he emphasize on atomic number rather than atomic weight, that we'll discuss. So Henry Moseley ने जब modern periodic table start किया तब आइसोटोप के इन्वेंशंस हो चुके थे. न्यू एलिमेंट्स आर ऑलरेडी फाउंड and most important thing, atomic theories are developed. Now atomic theories are developed का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्कवरीज एंड एटम किस हिसाब से है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका था. मीन्स दिस इज योर एटम having a nucleus comprises with neutron and proton and outermost shell having electron. Any element can be represented by X, A and Z, where A is nothing but mass number and Z is nothing but atomic number. Now mass number is nothing but the sum of proton plus neutron, while in case of Z is nothing but number of proton, or many times they are also referred as number of electron. So basically number of proton over here, number of proton over here. Then there is a difference in many atoms in atomic mass. तो यहाँ पे पता चला कि प्रोटॉन के अलावा एक और चीज भी न्यूक्लियस में होता है जिसका चार्ज नहीं होता है बट इट हैज मास, दैट इज नथिंग बट न्यूट्रॉन. एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा. सोडियम 1123. सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 बट मास ऑफ सोडियम इज 23. सो 11 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे, प्लस 12 न्यूट्रॉन है. So neutron has somewhat addition to this proton and due to this there is a difference between this. ये डबल नहीं हो रहा है. देखिए 11 22 नहीं है, 23 है. So just because this clearly resembles कि nucleus having proton as well as neutron and neutron has some mass but does not have any charge, and due to this इंस्टेड ऑफ एटॉमिक वेट अगर एटॉमिक नंबर से पूरा क्लासिफिकेशन जस्टिफाई किया गया देन इट बिकम्स रियली वेरी वर्थ एंड यूजफुल. एंड इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंडिंग है, ना ही के एटॉमिक वेट के ऊपर से. अब जैसे ही हम ये एटॉमिक नंबर के ऊपर चले जाते हैं बहुत सारे एनोमली और जो ड्रॉबैक मेंडलीव के थे वो क्लियर हो जाएंगे. सो सेकेंड ड्रॉबैक था देयर इज नो प्लेस फॉर आइसोटॉप्स. अब आइसोटॉप क्या था? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट. अब पूरे एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही अरेंज किए हुए, तो देयर इज नो सेपरेट प्लेस फॉर आइसोटॉप्स. तो आइसोटॉप्स की पोजीशंस बताने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट एनोमली दैट इज एलिमेंट्स हैविंग ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर द एलिमेंट हैविंग लोअर एटॉमिक मास. हमने लास्ट सेशन में बहुत इन डिटेल डिस्कस किया था टेलुरियम एंड आयोडीन एंड कोबाल्ट एंड निकल.
जो अगर पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर से ही डिफाइन किया गया हुआ है तो अब देयर इज नो चेंज इन मास, अब मास को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है, एंड ड्यू टू दिस एनोमली इज सॉल्व्ड. One anomaly is still there, that is there is no fixed position of hydrogen. हाइड्रोजन की पोजीशंस इस टाइम पे भी फिक्स नहीं हुई थी. बहुत सालों के बाद हाइड्रोजन को IUPAC ने सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा गया था. So the position of hydrogen was not fixed by Henry Moseley. So this limitations of Mendeleev overcome by Henry Moseley. So the modern periodic table, in this periodic table, elements are arranged in increasing order of atomic number. Once again we emphasize on atomic number. It contains 7 horizontal rows that is entitled as a periods and 18 vertical columns that is entitled as a group. So 7 rows and 18 column के अंदर ये पूरा का पूरा periodic table को define किया गया. Elements having a similar outermost electronic configuration are arranged in a same group or family. Now electronic configuration के हिसाब से ये पूरा हुआ, means S block, P block, D and F block के हिसाब से इसको arrange किया गया. Group number 1 to 18, due to the similar outermost electron, the configurations and the valencies of this element present in a same group having the same properties. So there are 7 periods. अब एक पीरियड के बारे में भी डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं. पीरियड किस हिसाब से था? सबसे पहले पीरियड के अंदर खाली 2 एलिमेंट है, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम. देन सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट है, दैट इज लिथियम टू नियॉन, दैट इज 8 एलिमेंट प्रेजेंट इनटू द सेकंड. थर्ड के अंदर वंस अगेन 8 एलिमेंट है, दैट इज सोडियम से लेके आर्गन तक. अब यहां से डी ब्लॉक इंटरवेंशन हो जाएगा, तो दैट इज यू हैव 18 एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड. So period 1, 2 and 3 are entitled as short periods. Now we moved on to this long periods. Long periods के अंदर आएगा 4th and 5th. 4th period having 18, that is from potassium से लेके krypton तक. 5th period के अंदर आएगा rubidium से लेके xenon तक. They are entitled as a long period. And most important 6th having 32 element, that is cesium से लेके radon तक, that is entitled as monster period. And 7th period having element having 32 elements. So this is all about total 7 periods. So basically in detail discussion करना है periods and groups के बारे में. So इससे पहले थोड़ा सा interesting topic start करते हैं ब्लॉक के ऊपर जाने से पहले. That is how IUPAC interventing this new inventions of the element. सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बहुत डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से एस्टेब्लिशमेंट किया और डिस्कस करने का ट्राई किया, बट हाईएस्ट सक्सेस मिला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का. इनिशियली कुछ लोगों ने पीरियोडिसिटी इन केमिकल रिएक्शंस मींस केमिकली कैसे रिएक्टिव है उसके हिसाब से भी कुछ अरेंजमेंट किया. देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन एंड फाइनली दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से एज वी ऑलरेडी डिस्कस 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स के अंदर ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल डिफाइन किया गया है. So first period having 2 element, second period having 8 elements, third having 8 element, fourth is 18, fifth is 18, sixth 32 and 7 32. तो ये बहुत ही easy याद रखिएगा. 2 8 8 18 18 32 32 लाइकवाइज एलिमेंट्स को अरेंज किया गया हुआ है. अब 100 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आए तो एलिमेंट्स को साइंटिस्ट के नाम से डिनोट किया गया. जैसे 101 गोज टू मेंडेलीव ने ढूंढा था तो मेंडेलिनियम. 102 गोज टू दिस नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल ने फाइंड आउट किया था, दैट इज कॉल्ड इज नोबेलियम. एंड लॉरेंस ने फाइंड आउट किया था तो दैट इज कॉल्ड इज लॉरेंसियम. बट वन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑन 104, जैसे ही 100 के पीछे जितने भी एलिमेंट है दे ऑल आर सिंथेटिक एलिमेंट, मीन्स दे आर नॉट अकरिंग इन अ नेचर. केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर उसको सिंथेसिस करके बनाना होता है. तो 104 के लिए 2 डिफरेंट रीजन से 2 डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्लेम किया. फ्रॉम यूएसए रुथरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्लेम किया 104 एज अ रुथरफोर्डियम, एंड रशियन सोवियत से एक और साइंटिस्ट ने क्लेम किया 104 पे, दैट इज कॉल्ड इज कुर्तचोवियम. बट जैसे ही इन दोनों के पास IUPAC ने प्रूफ मांगे, देन कुर्तचोवियम कैन नॉट प्रूव their invention as a 104th element.
मीन्स जैसे ही लोगों को पता चला कि एलिमेंट्स ढूंढे जाते हैं, थोड़ा बहुत फाइंड आउट करने के बाद दे क्लेमिंग आई फाउंड एलिमेंट्स। जैसे IUPAC की कमेटी के अंदर सबमिशन करने गए, दे वांट प्रूफ, और इन साइंटिस्ट के पास प्रूफ नहीं था, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट भी मिले। इसकी वजह से IUPAC ने एक टिपिकल नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया। वो नोमेनक्लेचर किस हिसाब से था? So this is 0 to 9. These are the name, that is 0 stands for nil, 1 stands for un, 2 stands for bi, 3 stands for tri, 4 stands for quad, 5 stands for pent, 6 stands for hex, 7 stands for sept, 8 stands for oct, 9 stands for in. And abbreviation जो मिला, that is called as N, U, B, T, Q, P, H, F, O, E plus IUM. IUM means after 100. Means 100 एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट क्लेम किए गए, इनिशियली जब भी IUPAC में वो सबमिट हुए तो उनको एक ट्रायल नेम दिया गया। ट्रायल नेम इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू परचेज अ न्यू व्हीकल, आपके व्हीकल के ऊपर एक टेम्पररी नंबर सबसे पहले मिलता है। टेम्पररी नंबर एटलीस्ट 15 डेज, 20 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ तक चलता है। देन यू हैव अ परमानेंट नंबर। मीन्स तब तक पूरी आरटीओ की प्रोसेस क्लियर हो जाती है, आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, एवरीथिंग रजिस्टर्ड, एंड देन यू गेट द परमानेंट नंबर। लाइकवाइज जब भी कोई भी साइंटिस्ट कोई एलिमेंट क्लेम करता था, इनिशियली उसको वो नेम नहीं दिया जाता था। टेम्पररी कंडीशंस के लिए उसको एक टेम्पररी नंबर मिलते थे। वो टेम्पररी नंबर इस हिसाब से फाइंड आउट किए गए। सो लेट्स टेक एग्जांपल कैसे नंबरिंग किया जाता था। लेट्स टेक एग्जांपल 118। 118 का मतलब होगा UUO। अब ये UUO क्या है सर? तो दैट इज 118। 1 क्या है? 1 मीन्स अन, फिर से 1 मीन्स अन, एंड 8 का मतलब होगा ऑक्ट। सो देखिए नंबरिंग और नाम कैसे मिला उसको, अन ऑक्टियम। 118 का IUPAC नेम, टेम्पररी नेम क्या हुआ? अन ऑक्टियम। अन स्टैंड्स फॉर 1, अन स्टैंड्स फॉर 1, ऑक्ट मीन्स 8, एंड IUM आफ्टर 100 दैट इज, और इसका सिंबल क्या मिलेगा उसको? UUO। लाइकवाइज 114 एलिमेंट अगर है तो उसको सिंबल क्या मिला होगा? कैपिटल U स्मॉल q। वाई? बिकॉज 1, 1 एंड 4 मीन्स क्वाड, so that is Q, so that is अनक्वाडियम। कई बार स्कूल की एग्जामिनेशन में 1 मार्कर के अंदर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, गिव द IUPAC नेम ऑफ 114 एलिमेंट और 118 एलिमेंट। तो आपको सिंपल 118 लिखना है, अन ऑक्टियम करके लिखना है, दैट इज 118 IUPAC नेम। लास्ट इज 110, 110 means once again 1 means un, once again 1 means un, and 0 means nil, IUM, nilium, that is 110. So likewise this is the temporary nomenclature of IUPAC. जब तक confirm all the tests are not validated by this IUPAC, till time जो भी साइंटिस्ट ने जो भी एलिमेंट क्लेम किया है उसको इंटरिम कंडीशन में ये नाम दिया जाता है। जैसे ही उन लोगों के नाम कंफर्म हो जाते हैं, देन ऑल द स्टफ, फिर बैलेट इश्यूज होते हैं, एंड देन फाइनली जो साइंटिस्ट ने क्लेम किया है उस साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से उसको एलिमेंट मिल जाता है। सो दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ IUPAC। अब इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट इज S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड F में किस हिसाब से उसको डिवाइड किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ब्लॉक वाइज। थैंक यू।